آج بھی رات کے 12 بجنے والے تھے، لیکن میں گھر نہیں گیا تھا۔ جب تک 4 پیسے جمع نہ ہوتے میں گھر جاتا ہی نہیں تھا۔ جانتا تھا کہ اماں میرے پیسوں کا کتنی شدت سے انتظار کرتی ہے۔ آخری ریل گاڑی نے 2 بجے آنا تھا، اس کے بعد ہی میں گھر جاتا۔ اچانک ہی ریل گاڑی کا وسل بجا۔ میں جان گیا کہ عنقریب ریل گاڑی آنے والی ہے۔ اس کے بعد 2-4 سواریاں اس اسٹیشن پر اتر جائیں گی اور ٹرین اپنا سفر جاری رکھے گی۔ کاروبار آج کل بہت ہی مندا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کرائے بہت زیادہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بہت کم لوگ ریل گاڑی کا سفر افورڈ کر پاتے۔ میں بے چینی سے کھڑا رہا۔ 3-4 سواریاں اتری، اپنا اپنا بیگ تھامے وہ قریب کھڑے رکشوں کو اپنے جانے والی منزلوں کا بتا کر اس میں بیٹھ گئے۔ کسی نے بھی میرے اسٹال کا رخ نہیں کیا تھا۔ میں مایوس سا ہو گیا۔ اب اسٹال بند کرنا تھا۔ ابھی بند کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری نظر بینچ پر بیٹھی اس لڑکی پر پڑی۔ میں حیران رہ گیا۔ اس لڑکی پر میری نظر ابھی پڑی تھی، شاید یہ ٹرین سے اتری تھی۔ خوبصورت لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے سفید ہاتھ اور سفید لباس بتا رہا تھا کہ یہ لڑکی انتہائی خوبصورت ہوگی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بینچ پر یوں بیٹھی تھی جیسے اس دنیا سے بے نیاز ہو۔ میں حیران بھی رہ گیا۔ بھلا رات کے 2 بجے اکیلی لڑکی کا اسٹیشن پر موجود ہونا حیران کن تھا۔ اسی لیے میں اس کے پاس گیا۔ میڈم، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ دیکھیں رات کا وقت ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ نشئی چرسیوں کا یہاں دور ایک ٹھکانہ ہے، اکثر وہ اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں۔ میں اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا، تبھی ایک دم سے اس نے چہرہ اٹھایا۔ اس کی روتی ہوئی کالی آنکھیں اور خوبصورت چہرہ، پہلی نظر میں ہی میں ساکت کھڑا رہ گیا۔ سچ میں وہ کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ غمزدہ لہجے میں کہنے لگی، جس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو اسے دنیا کا ہر کونا اپنا ٹھکانہ محسوس ہوتا ہے۔ میں بھی اس بھری دنیا میں اکیلی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور بے چینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کہاں سے آئی ہیں اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ لیکن وہ چہرے سے بہت کمزور لگ رہی تھی، اسی لیے اس نے میری بات کا جواب نہیں۔ تب میں اس کے لیے گرما گرم برگر بنا کر لے آئی۔ وہ بےتابی سے کھانا کھا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی دن سے بھوکی۔ اب اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ پھر وہ غمگین لہجے میں کہنے لگی، میں پچھلے 3 دن سے بھوکی پیاسی یہاں وہاں بھٹک رہی ہوں۔ تمہارا شکریہ، تم نے مجھے کھانا دیا۔ تم ایک نیک انسان لگتے ہو۔ اس نے میری تعریف کی تو میں خوش ہو گیا۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری پھر کہنے لگی، میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میری سہیلی نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے میری ایک ویڈیو بنا کر مجھے بدنام کر دیا اور وہ ویڈیو میرے ماں باپ نے دیکھ لی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھے اس لڑکی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو گھر سے کیوں نکالا گیا؟ میں تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی گھائل ہو گیا تھا۔ پھر رات کے 2 بج رہے تھے، اسی لیے اسے اکیلا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، آپ میرے ساتھ چلیں، یہاں سے تھوڑی دور میرا گھر ہے۔ دیکھیں یہاں اسٹیشن پر ہم جیسے مزدور بھی کام کرتے ہیں، تو کچھ لوگ صرف یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کسی کی تفریح کی وجہ بن جائیں، اس لیے میرے ساتھ چلیں۔ وہ لمحے بھر میں میرے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی۔ کیا ہوا اگر میں اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا؟ اسے بھی تو میری مدد کی ضرورت تھی۔ وہ بڑے آرام سے لمبے لمبے بال لہراتی میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، لیکن ادھر ادھر ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ اچانک ہی اسے ایک چیز نظر آئی تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ وہاں پر کیا ہے؟ میں نے اس کے اشارے کی تقلید میں جیسے ہی نظر اٹھائی میں ساکت کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی ایک دم سے اپنا روپ بدل چکی تھی۔ میرا نام مجیب ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے سر پر 4 بہنوں کی ذمہ داری اور باپ بچپن میں ہی چھوڑ کر فوت ہو گیا تھا۔ میں نے صرف 8 کلاسیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد میں نے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ پہلے تو میں اس ریلوے اسٹیشن پر چائے وغیرہ فروخت کیا کرتا تھا اور سردیوں میں گرم انڈے۔ پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑے پیسے جمع ہو گئے تو میں نے ایک برگر کا اسٹال لگا لیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب گھر کا گزارا اچھا ہو رہا تھا، لیکن مجھ سے بڑی 3 بہنیں جوان تھیں۔ اماں کو ان کی شادیوں کی فکر تھی اور میں بھی یہی سوچتا کہ میری بہنوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، ایک اکیلا میں انہیں پالنے والا۔ ایسے میں میری بہنیں بھی سلائی وغیرہ کر لیتی تھی۔
ये रेलवे स्टेशन बहुत पुराना था, हमारे घर से बिल्कुल करीब। यही वजह थी कि ये मेरे रोजगार का जरिया बन गया था। स्टेशन पर बहुत से लोग मुझे जानते पहचानते थे। सब लोगों को मालूम था कि मैं यहाँ तन्हा लड़का हूँ। यही रेलवे स्टेशन पर कमाते कमाते जवान हुआ। अब मैं 22 साल का नौजवान लड़का था, लेकिन अभी तक मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं था। मैं अपनी बहनों की शादी भी नहीं कर सका, जिनकी उम्रें तेजी से गुजर रही थी, और अम्मा को ये परेशानी खाई जा रही थी। यही वजह थी कि वो आए दिन बीमार रहती। अब मैं दिल में सोचने कि इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा तो अम्मा तरह तरह के सवालात करेगी, लेकिन फिर भी मैं किसी नौजवान लड़की को यूं अकेला स्टेशन पर छोड़कर नहीं जा सकती, जबकि मुझे वहाँ के हालात के बारे में भी इल्म था। फिर मैं उसे अपने घर ले आया। अम्मा ने कई सवाल पूछ डाले थे, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। अजीब बेनियाजी उसके अंदाज में थी। वो सर झुकाए बैठी थी, फिर बड़ी बाजी कहने लगी, अम्मा परेशान लग रही है, ऐसे सवाल करके इसे मजीद परेशान न करो। यूं अम्मा खामोश हो गई। मैंने देखा वो उदास सी एक दरख्त के नीचे बैठी थी, जो हमारे घर के बीच में मौजूद था। तभी मैं उसके पास गया और कहने लगा, देखो अभी तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन तुम बहुत जल्द हमारे घर में एडजस्ट हो जाओगी। उसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसे दिलासा तसल्ली देना चाहता था। न जाने क्यों वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। उसने मेरी बात पर हाँ में सर हिला दिया। अब मैं अगले दिन काम पर गया। फिर मेरी वापसी रात के 2 बजे हुई। जैसे ही मैं अपने घर की तरफ आने लगा, उस सुनसान रास्ते से गुजरते हुए मुझे दूर एक सफेद लिबास में मलबूस लंबे लंबे बालों वाली लड़की खड़ी दिखाई दी। मुझे ऐसे गुमान गुजरा कि ये वही लड़की है जिसे मैं कल अपने घर लेकर गया था। वो मुझसे पीठ मोड़ कर खड़ी थी, और उस रास्ते पर किसी लड़की की मौजूदगी बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था। उसके बारे में मशहूर था कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। मैं उसे पहचानने के लिए जैसे ही करीब गया तो मेरी आंखों ने जैसे धोखा खाया, क्योंकि वो लड़की मेरी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। अब मैं ला खौला वला पड़ता वहां से जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा। जान गया कि ये जरूर कोई गैर फितरी मखलूक थी, तभी तो मेरी आंखों के सामने आई है। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो सामने बैठी उस लड़की को देखकर अपने दिल में सोचने लगा कि मुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अम्मा मुझे उस रास्ते से गुजरने से भी मना करती थी, लेकिन मैं क्या करता। दूसरा रास्ता बहुत ही दुश्वार था और लंबा भी। मैं रात को बहुत थका हारा अपने घर जल्दी लौटने की कोशिश करता, इसीलिए उसी रास्ते से गुजरकर रोजाना घर आता था। लेकिन आज मेरे साथ इतना अजीब वाकया पेश आएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने देखा उस लड़की ने अम्मा के दिल में जगह बना ली थी। वो भाग भाग कर घर के सारे कामकाज निपटाती, बड़ी बाजियों के साथ हंसी मजाक करती। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे घर का कोई फर्द हो। लेकिन अभी 2 दिन ही गुजरे थे। अचानक फिर से उसी रास्ते से आते हुए मुझे वो अंधेरी जगह पर खड़ी नजर आई। मैं उसे देखकर डर गया। बार बार ऐसा ही हो रहा था। वही लंबे लंबे बाल, सफेद लिबास और बिल्कुल सफेद चेहरा मुझे दूर से दिखाई दे रहा था। बार बार मुझे यही लगता कि ये वही लड़की है जो मेरे घर में रह रही है, लेकिन यहाँ आखिर इस जंगल में क्या करने आती है। जैसे ही मैं उसके करीब जाता वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाती। अब मैं इस उधेड़पन में मुब्तला था कि मेरी आंखों का धोखा है या सच में मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं फौरन घर जाना चाहता था, यकीन करने के लिए कि वो घर में मौजूद है या नहीं। लेकिन आज तो मेरे होश उड़ गए जब मुझे वो कहीं नजर नहीं आई। मैं बेचैनी से अम्मा से कहने लगा, अम्मा वो लड़की कहाँ है, शमा जिसे मैं लेकर आया था। अम्मा कहने लगी, अरे वो तो छत पर गई है, कह रही थी कि गर्मी लग रही है, घबराहट हो रही है। अब मैं तेजी से ऊपर छत पर गया, लेकिन वो छत पर कहीं मौजूद नहीं थी। मुझे शक होने लग गया कि ये जरूर वहीं गई है। हम सबसे चुप कर, लेकिन आखिर इस लड़की का उस जंगल में जाने का क्या काम है। वो जंगल जो बहुत ही खौफनाक है, जहाँ पर सिवाय खारदार झाड़ियों और पुराने दरख्तों के सिवा कुछ भी नहीं है। अभी मैं अजीब सोच लिए पलटने ही वाला था कि अचानक उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सामने वही लड़की शमा खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इस कदर खौफनाक थी कि मैं उसे देखकर खौफजदा हो गया। तुम मुझे तलाश कर रहे थे? वो अजीब सी मुस्कुराहट से मुझे देखते हुए पूछने लगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहने लगा, तुम अभी अभी कहाँ गायब हो गई थी? मेरी आंखों में शक देखकर वो कहने लगी, हाँ मैं छत पर आई थी, लेकिन फिर मैं नीचे चली गई थी। आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? वो हैरान थी। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया।
खामोशी से खाना खाया और खाते ही लेट गया। लेकिन अभी रात के 3 बजे थे कि अचानक ही मैंने एक सफेद दुपट्टा अपने पास लहराता हुआ आगे जाता देखा तो मैं चौंक कर उठ बैठा। फिर मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। वो लड़की शमा ही थी जो दरवाजा खोलकर बाहर जा रही थी। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि इस लड़की ने मुझे जरूर कोई झूठी कहानी सुनाई है। जरूर ये किसी खास मकसद से इस घर में आई है। न जाने ये रोजाना कहाँ जाती है। कहीं ये किसी हिंदू आमिल की बेटी तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ आमिल मौलवी टाइप लोग उस जगह पर जाते हैं किसी खास मकसद के लिए या फिर चिल्ला वगैरह काटने के लिए। अगर ये मुसलसल वहीं जा रही है तो जरूर इसके पीछे इसका कोई खास मकसद है। अजीबोगरीब सोचें मेरे जहन में आ रही थी और मैं उसका पीछा करने पर मजबूर हो गया। तभी तेजी से घर से बाहर निकला। मैंने दूर से उसका सफेद लिबास देख लिया था। वो चांद की तरह चमक रही थी और उसी रास्ते की तरफ जाती बेनियाजी से इधर उधर देख रही थी और न उसे किसी का खौफ था, जबकि मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक ही वो एक पुराने दरख्त के नीचे खड़ी हो गई जिसकी शाखें जमीन को छू रही थी। मैं उसे पुकारना चाहता था, लेकिन मुझे उस दरख्त को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उस दरख्त से उसका कोई खास रिश्ता हो। फिर अचानक वो उसके नीचे चली गई। मैं हैरान था वो उसकी शाखों में क्यों छुपना चाहती है। यही देखने के लिए मैं जैसे ही आगे आया, मैंने झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसका मतलब था कि वो गायब हो चुकी थी। अब मैं अपना सर पकड़े खड़ा था। अजीबोगरीब लड़की को मैं रेलवे स्टेशन से उठाकर अपने घर ले आया था। ये कौन है और किस मकसद से यहाँ आई और नजरों से ओझल कैसे हो सकती है। शायद उसने किसी नजरबंदी का कोई अमल कर रखा है। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे घर से निकलवा दूं। अम्मा से कहकर दूसरे दिन मैं अम्मा से कहने लगा, अम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप इस लड़की से कहें कि यहाँ से चली जाए। मुझे गौर से देखा और कहने लगी, पागल हो गए हो? मैं तो ऐसी हुनरमंद लड़की को कहीं जाने ना दूं। अरे हम जो काम घंटों में करते हैं वो ये चुटकियों में निपटा देती है। तू नहीं जानता ये हर काम करने में कितनी माहिर है। बहुत ही नेक बच्ची है। तुझे इससे क्यों तकलीफ हो रही है? उल्टा अम्मा ने मुझे खामोश करवा दिया। लेकिन अब मेरी आंखों के सामने वो खटक रही थी। मैं समझ गया कि रोजाना उसका उस सुनसान और आसेब ज़दा जगह पर जाना हमें मुसीबत में मुब्तला कर सकता है। ऐसा ना हो कि उस इलाके के लोगों को खबर हो जाए कि हमारे घर में एक ऐसी लड़की रहती है जो एक हिंदू आमिल की बेटी है। हो सकता है कि उसने अपने बारे में हमें सब कुछ झूठ बताया हो। ये जरूर कोई अमल करने वहाँ जाती है। अब मैं उससे दूर दूर रहने लगा, लेकिन उस पर खास नजर भी रखने लगा। लेकिन वो तो हर दूसरे ही दिन वहाँ जाने लगी। जैसे ही घर में सन्नाटा फैलता, अचानक ही घर का मरकजी दरवाजा खुलता और उसके साथ ही मेरी आंख भी खुल जाती। मैं रोजाना उसका पीछा करता। कभी वो किसी पुराने दरख्त के सामने जाकर खड़ी हो जाती तो कभी किसी झाड़ियों के पीछे चली जाती। इसका क्या मकसद है और ये रोजाना क्यों यहाँ आती है? मेरे मन में कई सवाल उठते। मैं जब भी उसके करीब जाता तो ये मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाती। मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा था। अम्मा और बहनें तो किसी कीमत पर उसे घर से निकालने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उससे कहूँ कि यहाँ से चली जाए। ऐसा न हो कि हमारे लिए किसी परेशानी की वजह बन जाए। लेकिन जैसे ही आज रात में घर आया तो उसकी हिचकियों की आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गया। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, जबकि उसकी सिसकारियाँ पूरे घर में गूंज रहे थे। जबकि अम्मा अफसरदगी से उसके बराबर बैठी थी। अम्मा उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, अरे बेटा, आ जाएंगे तुम्हारे घर वाले, कभी न कभी ले जाएंगे, क्यों इतनी उदास होती हो? वो रोते रोते कहने लगी, नहीं, वो कभी मेरे पास नहीं आएंगे। वो मुझे भूल चुके हैं। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। मुझे ये सब उसका ढोंग लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने अमल में नाकाम हो गई है, तभी तो आज रो रही है। मैंने उसे कोई तसल्ली नहीं दी, लेकिन अम्मा से जरूर पूछा था कि वो क्यों रो रही थी। अम्मा कहने लगी, अरे अपने घर वालों को याद करके रो रही थी बेचारी। छोटी सी गलती हुई तो घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया। अब जाहिर है माँ बाप को इतनी जल्दी भूलना मुमकिन तो नहीं, बल्कि माँ बाप सारी जिंदगी नहीं भुलाए जाते। अब ये भी अपने माँ बाप को याद करके रो रही है। मैं सारा मामला समझ। अम्मा उसके आंसुओं के जाल में आ चुकी थी, लेकिन मैं नहीं। पूरा दिन मैं अपने काम में मसरूफ रहता। मुझे सर उठाने की भी फुर्सत न मिलती। काम इतना ज्यादा तो नहीं चल रहा था, लेकिन आए दिन वहाँ मुझसे भत्ता मांगा जाता। जाहिर है मुझे स्टॉल लगाने की इजाजत दी थी, इसलिए मैं परेशान रहता। कभी कभी दिल चाहता कि
उस जगह को छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं जहाँ पर पुरसुकून होकर अपना कामकाज करूं। लेकिन यहाँ तो एक तरफ भत्ता लेने वालों का खौफ था तो दूसरी तरफ घर की परेशानियां। मैं अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करना चाहता था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। लेकिन उस दिन मुझे वापस आते आते बहुत रात हो गई थी। रात के 3 बज रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं उस रास्ते की तरफ आया, मेरी आंखों ने एक हैरतनाक मंजर देखा था। वो मुझसे चंद कदम के फासले पर थी और ऐसे चल रही थी जैसे कोई नींद में हो। एक तरफ देखते हुए वो कोई अंदाज में चलती जा रही, कभी एक तरफ नीचे जाकर खड़ी होती और मैं चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि आखिर ये क्या करती है, लेकिन अचानक ही उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ें सुनकर मैं हैरान रह गया। जब वो बुलंद आवाज से रोते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ हो, लेकिन मेरे सामने क्यों नहीं आते? मैं इतने दिन से भटक रही हूँ इंसानों की दुनिया में, आखिर तुम मुझे कब वापस अपने पास लेकर जाओगे? वो बुलंद आवाज से चिल्लाते हुए ना जाने किसको मुखातिब कर, लेकिन उसका ये अंदाज देखकर मैं खौफजदा हो गया। लेकिन मेरी आंखों ने जो मंजर देखा उसे देखकर मुझ पर दहशत तारी हो, क्योंकि वो जिस दरख्त के सामने खड़े होकर रो रही थी, अचानक उसकी शाखें जोर जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ये देखकर मुझ पर खौफ तारी हुआ और मैं उससे पहले ही घर जाना चाहता। मैं चाह रहा था कि आज ये घर जाएगी तो मैं उससे सवाल करूंगा कि आखिर ये रोजाना यहाँ क्यों आती है। इसलिए मैं उससे पहले ही घर पहुँचना चाहता था। तेज तेज चलता अब मैं घर की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने घर की दहलीज पर कदम रखा, सामने उसके वजूद को देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। अम्मा को तो देर से जागने की आदत थी, लेकिन अम्मा के साथ आज वो भी बैठी थी। आखिर मैं मुझसे पहले कैसे घर पहुंच गई? मैं तो अपनी पूरी शिद्दत से तेज तेज चाल चलता घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सामने बैठकर मुझे अजीब धोखे में मुब्तला करे। फिर मैं खाना खाकर लेट गया। तभी मैंने खिड़की से झांक कर देखा, ऊपर छत की तरफ जा रही थी। चांद को देखती अजीब नजरों से वो बिल्कुल ही दीवानी लग रही थी, माना कि वो परियों जैसी हसीन खूबसूरत लड़की। लेकिन फिर भी मुझे उस पर शक था। मैं उसके पीछे छत पर जा पहुंचा, तभी उसे पुकार कर कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी दोगली कैसे हो सकती हो। तुम हर रात हमें धोखा देकर जाने कहाँ जाती हो? आखिर इसकी वजह क्या है? मेरी आंखों में शक के साथ नफरत भी थी। तभी वो अचानक मेरी तरफ पलटी और कहने लगी, इसके पीछे एक वजह है। मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन आपने मुझे इस घर में जगह दी, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। न जाने आने वाले वक्तों में कब मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। क्या मतलब है? तुमने मुझसे क्या झूठ कहा था? क्या तुम्हारे माँ बाप ने घर से नहीं निकाला? उसने नफी में सर हिलाया, फिर कहने लगी, नहीं, बल्कि मैं तो खुद अपने माँ बाप को तलाश करती फिर रही हूँ। अपनों की तलाश में इस दुनिया में भटकती फिर रही हूँ। मैं उनसे बिछड़ गई थी बहुत सालों पहले, लेकिन आज ऐसे लगता है कि वो यहीं कहीं मेरे करीब है। एक न एक दिन मैं उन्हें तलाश कर लूंगी, क्योंकि मुझे उस दरवेश आमिर बाबा ने बताया था कि वो यहीं कहीं है, उनका पूरा कबीला यहीं आबाद है। वो खोए खोए से लहजे में कहने लगा, जबकि मैं उसकी बातों से खौफ महसूस कर रहा था। फिर वो मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगी, जानते हो कि मैं किससे तलाश करती फिर रही हूँ? एक जिन्नात के कबीले को, क्योंकि मैं भी एक जिन्नज़ादी हूँ। मैं उनके कबीले की एक जिन्नज़ादी जो अपने कबीले से कई साल पहले भटक गई थी और आज उन्हें तलाश करती यहाँ इंसानों की दुनिया में पहुँच गई हूँ। बहुत सालों से सफ़र कर रही हूँ, न जाने मेरा सफ़र कब इख्तिताम पजीर होगा। मैं तो उससे सवाल जवाब करना चाहता था। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए कि वो एक जिन्नज़ाद है, जिन्नात की बेटी जो उनकी तलाश में यहाँ भटक रही है। जब ही तो कहूँ कि ये हर रोज मेरे घर में इस कदर तब्दीली क्यों आ रही है? जो काम मेरी बहनें हफ्तों में करती थी, वो चंद सेकंड में वो काम कर दिया करती। पहले घर में खाने पीने की तंगी थी, पैसों की तंगी थी, लेकिन उसके आने के बाद कोई कमी नहीं रही। ये सब उसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि वो एक ताकतवर जिन्नज़ादी थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो कहने लगी, मैं एक जिन्नज़ादी हूँ, सालों से अपने कबीले को तलाश कर रही हूँ। यकीन करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस मुझे जिसकी तलाश है, मुझे अपना काम करने दो। दरअसल ये 20 साल पहले की बात है, जब मैं छोटी सी थी। हमारा कबीला एक नहर के करीब आबाद था। मैं बहुत शरारती थी, अपने माँ बाप की लाडली और अकलौती बेटी। अचानक ही उनसे एक पानी की तेज लहर आई
और मैं उसमें बह गई थी। बहती हुई बहुत दूर निकल गई थी इंसानों की दुनिया में। मुझे यहाँ सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि ये सब मेरे जैसे नहीं थे। मैं इंसानों के बच्चों को एक दरख्त पर बैठकर देख रही थी, लेकिन मैं किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अभी मैं ताकतवर नहीं थी, बहुत छोटी थी। लेकिन वहाँ से गुजरने वाले एक फकीर दरवेश को देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैं उसे दिखाई दी थी जबकि वो गलियों में भीख मांग रहा था। मैं हैरान थी कि उसे मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ। फिर मुझे पता चला कि वो इंसानी फकीर नहीं बल्कि एक दरवेश था जो अपने ज़रूरी काम से इंसानों की दुनिया में आया था। उसने मुझे अपने पास बुलाया था। मैं डरती डरती उसके पास गई। फिर वो मुझे अपने साथ लेकर चला गया। उसकी एक झोंपड़ी थी जो दूर पहाड़ों पर बनी हुई थी। फिर उसने मुझे अपने साथ रखा। फिर एक दिन वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम एक जिन जाती हो, इसीलिए मुझे तुम पर बहुत तरस आया, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो और इंसानों की दुनिया में रहोगी तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें जिन्नात की दुनिया का सारा चाल चलन और उनकी ताकत के बारे में बताऊंगा। तुम एक ताकतवर जिन जाति बन जाओगी। फिर मैं रोते हुए उससे कहने लगी, लेकिन मैं अपने माँ बाप को ढूंढ रही हूँ, वो न जाने कहाँ हैं। मैं उनसे बहुत दूर आ गई हूँ, कभी जिंदगी में उनसे मिलूंगी भी या नहीं। तो वो दरवेश कहने लगा, जरूर मिल पाओगी। तुम जवान होने के बाद अपने माँ बाप के पास जाना, उन्हें तलाश करना। अगर उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जिस दिन मैं 18 साल की हुई, मैंने उस दरवेश से कहा कि आज मैं अपने माँ बाप को तलाश करने जाऊंगी। फिर वो कहने लगा, मैं तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि वो एक पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे मौजूद एक घने जंगल में आबाद है अपने कबीले के साथ। तुम वहां जाकर उनकी तलाश करो, एक न एक दिन वो तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन मैं रहूंगी कहाँ पर? मुझे जगह जगह पर न सिर्फ शैतानी जिन्नात बल्कि इंसानों से भी खतरा होगा। मैं फिक्रमंदी से उसे पूछ रही थी। तो वो कहने लगा, तुम एक इंसानी रूप लेकर जाओगी और एक शरीफ और नेक इंसान के घर रहना। तुम उसे देखते ही पहचान जाओगी कि ये आदमी कैसा है। मैं इसकी सारी बातें अच्छे से समझ गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया था। जिस तरह तुम यहाँ पर काम कर रहे थे, मुझे तुम्हारे चेहरे पर संजीदगी और शराफत दिखाई दी, जभी तो तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गई थी। अब हर रात मैं अपने माँ बाप की तलाश में निकलती हूँ। मुझे गलत न समझना, मैं यहाँ पर किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। बस जैसे ही मेरा काम हो जाएगा, मुझे अपने माँ बाप मिल जाएंगे तो मैं एक दिन इस घर से चली जाऊंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद 18 साल से माँ बाप से दूरी की वजह से वो बहुत मजलूम जिनजादी थी। मुझे उसे देखकर तरस आया। मैं कहने लगा कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम जिस मकसद से यहाँ आई हो वो कामयाब हो जाए, क्योंकि माँ बाप से दूरी क्या होती है ये हम इंसान अच्छी तरह समझते हैं। फिर मैंने उसका ये राज अपने सीने में दफन कर लिया था। मैं चाहता था कि जिस तरह उसने ये बात सबसे छुपा कर रखी है, इसी तरह मैं भी कभी किसी को उसकी हकीकत नहीं बताऊंगा कि यहाँ किस मकसद से आई है। अब वो हर रात जाती और कई कई घंटे बाद वापस लौटती थी। मैं अक्सर उसे रास्ते में आते जाते देखता, लेकिन अचानक ही एक दिन अम्मा कहने लगी, अब मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहनों की शादी कर दूं। मैं हैरान था कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो कहने लगी, अरे मैं तो एक ही गुल्लक में सारे पैसे जमा कर रही थी, लेकिन अब मैंने ये गुल्लक तोड़ा तो हैरान रह गई। इतने ढेर सारे पैसे निकले हैं, ऐसे लगता है कि मैंने तो इतने पैसे डाले नहीं थे, जाने ये कैसे खुद ब खुद भर गया। अब मैं दिल में मुस्कुरा दिया। मैं समझ गया कि ये सब उस जिनजादी की वजह से हुआ है, क्योंकि वो अपनी ताकत से ये सब कुछ कर रही थी। फिर अम्मा ने बहनों के लिए रिश्ते तलाश करके इत्तेफाक से उन्हें बहुत अच्छे रिश्ते मिल गए थे, लेकिन जब भी कोई घर आता तो वो जिनजादी कहीं न कहीं छुप जाती। मैं उसकी ये बात अच्छी तरह समझता था। एक दिन अम्मा कहने लगी, ना जाने ये इंसानों से इतनी क्यों घबराती है। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। जाहिर है वो इंसानों के सवालात से घबराती होगी, क्योंकि उसे यहाँ रहने की आदत नहीं थी। लेकिन घर में शादी होने लगी तो मैंने देखा वो अजीब सी नजरों से सब चीजें देख रही थी। शायद उसने ये सूरत हाल कभी नहीं देखी थी। अब मैं खुश था
کہ میری दोनों बहनें रुखसत होकर अपने घर जा रही हैं, बाकी सिर्फ 2 रह जाती। ये सब उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि वो चुपके चुपके हमारी मदद कर रही थी। जब लाल जोड़े में मेरी बहन रुखसत हो गई, मैंने देखा उस दिन वो छत पर खड़ी होकर रो रही थी। जब मैंने उसके रोने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, तुम्हारी माँ जिस तरह से तुम्हारी बहनों से मोहब्बत करती है, उनकी इस मोहब्बत को देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वो भी मुझसे ऐसी मोहब्बत करती होगी। मैं उससे कहने लगा, क्यों नहीं, दुनिया की हर माँ अपनी औलाद से उतनी ही मोहब्बत करती है, फिर वो चाहे इंसान की माँ हो या जिन्नात की। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर मैं कहने लगी, जिस तरह मेरी बहनें लाल जोड़े में रुखसत हुई हैं, इसी तरह तुम भी जब अपने कबीले में जाकर माँ से मिलोगी तो तुम्हारी भी शादी होगी और तुम्हारी जिंदगी में भी कोई शामिल हो जाएगा। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन मैं उसकी नजरों से घबरा कर नीचे आ गया। उसकी तलाश मुसलसल जारी थी, लेकिन एक रात दरवाजे पर एक दरवेश आया था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो उसकी आंखें और हुलिया देखकर मैं बुरी तरह डर गया। फिर वो सरगोशी में कहने लगा, क्या शमा जिनजादी इस घर में है? ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे मालूम हो गया कि ये वही जिनजाद है जिसने उस जिनजादी को अपने कबीले की तलाश में यहाँ भेजा था। फिर वो मुझे कहने लगा, मैं उसे लेने आया हूँ। जान गया था कि वो इस घर में मौजूद है। दरअसल मैं एक लंबे सफर पर गया हुआ था, लेकिन आज ही वापस लौट आया हूँ। अब मैं उसे साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन जिनजादी ने जैसे ही उसे देखा तो उसने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और कहने लगी, जब तक मुझे मेरे कबीले वाले नहीं मिल जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वो फकीर जिनजाद कहने लगा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखा है। अभी भी तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करूंगा। तुम जिस तरह खुशी महसूस करो। उधर से अम्मा और बहनें हैरान थी कि ये कौन है जिससे मैं इस तरह बातें कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वह शमा भी ऐसे ही बातें कर रही थी, क्योंकि उन दोनों का आपस में ताल्लुक था। फिर वो जिनजाद मेरे सामने से गायब हो गया। मैंने ये मंजर बड़ी हैरत से देखा था। शमा ने गहरी सांस भरी थी। फिर वो कहने लगी, अब जिस मंजिल की तलाश में यहाँ आई हूँ उस मंजिल पर कदम रख कर ही जाऊंगी। वो पुरअज़्म थी। फिर अगली 2 रातें उसके लिए बड़ी कठिन थी, क्योंकि चांदनी रात में वो अपने खानदान को तलाश करती थी। ऐसे ही फिर रही थी। आज मैं उससे कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो उस जंगल में जाने के लिए तैयार थी। तो वो कहने लगी कि वो रास्ता बहुत दुश्वार है। तो मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, तो हो ना, मेरे साथ होते हुए तुम्हें कोई खतरा नहीं। वो ये सुनकर खुश हो गई। फिर कहने लगी, तुम एक बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। उसकी इस बात ने मुझे हकीकतन खुशी दी थी, लेकिन अम्मा ने मुझे घर से निकलते हुए देख लिया था। वो कहने लगी, आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहने लगा, अम्मा एक ज़रूरी काम है। शमा जिनजादी तो चुपके से गायब हो जाती, लेकिन मुझे कई सवाल के जवाब देने पड़ते। लेकिन मैंने उसे एक दरख्त के पीछे छुपते हुए देख लिया था। मैं उसके सामने जा पहुंचा। अब वो बहुत आगे निकल आई थी। अचानक ही मुझे ये जगह बहुत अजीब सी लगी, क्योंकि यहाँ पुरस्रार से घर बने हुए थे और अजीब व गरीब सी आवाज़ें भी आ रही थी। बहुत सी औरतें, बच्चों की और मर्दों की भी। दूर एक जगह पर रोशनी चमक रही थी। अचानक ही वो बुलंद आवाज से चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम सब यहीं पर हो। देखो, मैं कितने सालों पहले तुमसे बिछड़ गई थी और आज मैं वापस लौट आई हूँ। आज मेरे सामने आओ, मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ। अचानक ही सब निकलकर उसके सामने हाजिर होने लगे, जबकि मैं खौफ के मारे एक तरफ पीछे छुप गया था। मैं छुप गया कि ये सब जिन्नात हैं। इनमें कुछ जिन जातियां भी थी, कुछ जिन्नात के बच्चे और कुछ बड़े बड़े जिन्नात भी थे जो उसके सामने खड़े थे। अचानक ही उसकी माँ चिल्लाती हुई आई और कहने लगी, आह मेरी बेटी, तुम मुझसे 20 साल पहले बिछड़ गई थी। यकीन नहीं आता। देखो, तुम मेरी जवानी की तस्वीर हो। मेरी बेटी, आओ मेरे पास। एक बूढ़ी जिनजादी अपनी बाहें खोले उसका इंतजार कर रही थी। तभी वो तड़पती हुई उसके पास गई और उसके सीने से लग गई। दूसरी तरफ बिल्कुल उसकी हमशक्ल जिनजादियां भी उसके दाएं बाएं खड़ी थी। यकीनन वो उसकी बहनें थी। आज वो अपने खानदान से मिल गई थी। उसका पूरा कबीला जंगल के आखिरी कोने में मौजूद था, जो रेलवे स्टेशन के पीछे था। मुझे ये मंजर बहुत अच्छा लगा।
अब यकीनन वो कभी वापस नहीं आएगी। मैं चुपके से वहाँ से बहुत दूर चला आया, वापस अपने ठिकाने पर। लेकिन सुबह तक अम्मा और बहनें परेशानी से उसे तलाश करती फिर रही थी। मैं अम्मा से कहने लगा, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अम्मा कहने लगी, अरे वो बेआसरा बच्ची कहाँ चली गई? क्या उसके माँ बाप उसे लेने आ गए थे? तो मैं कहने लगा, हाँ, उसके माँ बाप उसे लेने आ गए थे। उन्होंने उसे माफ कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि वो वापस अपने कबीले चली गई थी। मैं मामूल की तरह अपना काम करने लगा। लेकिन एक दिन काम से वापस आ रहा था जब मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो उस जिनजादी को देखकर मैं हैरान रह गया। मैं हैरत से उसे कहने लगा, तुम यहाँ? तो वो मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ, क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे लगे हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। तुमने मेरी बहुत मदद की, यही वजह है कि आज मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। फिर कहने लगा, जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम मुझसे मुलाकात करने आ सकती हो। तो वो कहने लगी, हाँ, अगर तुम्हें भी कोई परेशानी हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी किसी मदद की, तो मुझे ज़रूर बताना। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। अब जब मैं आधी रात को उस रास्ते से गुजरता तो वो मुझे मुलाकात करने आ जाती और कहती कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदलना चाहती हूँ। तुम्हें इस कदर मेहनत करते देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो, बस यही मेरी ख्वाहिश है। उसकी बातों पर मैं हैरान रह जाता। लेकिन एक रात बड़ा ही अजीब वाक़या हुआ। जब मैं अपने घर में सो रहा था तो आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने उस दरवेश जिन्नात को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मुझे खड़ा घूर रहा था। फिर कहने लगा, वो जिनजादी कहाँ है? क्या वो इस घर से चली गई है? मैंने कहा, जी हाँ, वो जिसकी तलाश में आई थी बिलाखिर वो वहीं पर चली गई। वो अपने ख़ानदान के पास पहुंच गई है, लेकिन मैं उसे लेने आया हूँ और हर कीमत पर मुझे मालूम करना है कि उसका कबीला कहाँ आबाद है। मुझे मालूम था कि वो कहाँ पर रहती है, लेकिन मुझे उसकी हरकतें मशकूक लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो उस जिनजादी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं उससे कहने लगा, मुझे तो ये तो नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन हर रात वो उसकी तलाश में उस घर में चली जाती थी। एक रात गई तो वापस नहीं आई। फिर वो कहने लगा, ठीक है, मैं उसे तलाश करके ही रहूँगा, भले कुछ भी हो जाए, उसे हर कीमत पर हासिल करना है। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। पीछे से अम्मा बड़ी दहशतज़दा खड़ी थी। उन्होंने शायद मेरी सारी बातें सुन ली थी। अम्मा कहने लगी, सच सच बता, तू उस फकीर से क्या कह रहा था? कौन सी जिनजादी? क्या जो लड़की हमारे घर में रहती थी वो एक इंसानी लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी थी? मैंने सर झुका लिया। अब मैं क्या कहता? अम्मा ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। मैंने अम्मा का हाथ थामा और कहने लगा, अम्मा, जो आई थी बस समझ लें कि वो दूसरी दुनिया से आने वाली एक जिनजादी थी, लेकिन उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा फायदा ही करके गई है। अम्मा ने एक गहरी सांस भरी और कहने लगी, तभी तो कहूँ कि उसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई है कि वो 10 इंसानों का काम अकेला कर लेती है। मैं तो दुआ करती हूँ वो जहाँ रहे खुश रहे। अम्मा की दुआ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब मैं उस जिनजादी की वजह से परेशान था कि कहीं वो दरवेश फकीर उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि वो भी एक ताकतवर जिन्नात था। वो यकीनन उससे कोई अपना फायदा हासिल करना चाहता था। अब उसे ये बात बताने के लिए मैं बेचैन था, किसी तरह उसके पास जाना चाहता था। लेकिन 2 दिन हो गए थे उस रास्ते से गुजर रहा था, वो मेरे सामने नहीं आई थी। कहीं वो जिन्नात उसे अपने साथ तो नहीं ले गया? मुझे यही परेशानी खाई जा रही थी। इतनी मुश्किलों से तो वो अपने खानदान से वापस मिली थी, उसके बाद उनसे जुदा होना उसके लिए आसान नहीं होगा। मैं उसके बारे में जानना चाहता था। आखिरकार एक दिन अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं उसके कबीले की तरफ जा निकला। मैं देखना चाहता था कि वो वहाँ पर है भी या नहीं। तभी वो मुझे नहर के किनारे बैठी नजर आई। उसके लंबे लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। ये मंजर बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन उसने भी मेरी मौजूदगी महसूस कर ली। जब ही पलट कर मुझे देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखता रह गया। फिर कहने लगी वो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस वक्त हमारे कबीले में मौजूद हो, लेकिन मैं ये देखकर घबरा गया।
کہ اس کے پاس اس کی ساری جن زادیاں کھڑی بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک جن زادی کہنے لگی، آخر کیا معاملہ ہے؟ یہ آدم ذات تیری وجہ سے ہمارے قبیلے میں کیوں آیا ہے؟ ہمیں تو کسی انسان کو یہ خبر بھی نہیں ہونے دی کہ ہم یہاں پر آباد ہیں۔ تبھی میں اس جن زادی کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اب میں اسے بہت دور لے آیا تھا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگا، وہ فقیر جنات تمہاری تلاش میں دروازے پر میرے آیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا، لیکن آخر وہ مجھے کیوں تلاش کرتا پھر رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے اس کی بات سننی چاہیے، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہنے لگا، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں وہ تمہیں کچھ کر نہ دے، اسی لیے تم اس سے ملاقات نہ کرو بلکہ اپنی حفاظت کرو۔ یہ کہتے میں وہاں سے پلٹنے لگا کہ اچانک اس نے مجھے آواز دے کر روکا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میرا اتنا خیال ہے تو میری بھی ایک بات سنتے جاؤ۔ دراصل مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، میں تمہاری عاشق بن گئی ہوں۔ کیا تم مجھ سے ملاقات کرنے یہاں آ سکتے ہو؟ میں اتنے دن سے تمہارے سامنے اس لیے نہیں آئی کہ کہیں تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو جائے، لیکن اب میں مزید خود کو اس بات سے نہیں روک سکتی۔ میں تم سے ہر رات ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میں کہنے لگا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ میں بڑی مشکل سے اس قبیلے تک آیا ہوں۔ اگر کسی بھی انسان کو خبر ہو گئی کہ میرا تعلق جنات کے ساتھ ہے تو مجھ پر غلط الزام لگا دیں گے، اور تم نہیں جانتی کہ یہ میری زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم میرے پاس نہیں آؤ گے تو میں کبھی کبھار تم سے ملاقات کرنے آ جاؤں گی، کیونکہ مجھے تم سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ یوں میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ جب چاہے مجھ سے ملاقات کرنے آ سکتی ہے۔ پھر میں جلدی سے گھر آ گیا تھا، لیکن کیا جانتا تھا کہ وہ درویش فقیر میرا پیچھا کر رہا ہوگا۔ اس نے یہ راز جان لیا تھا کہ وہ جن زادی اپنے قبیلے کے ساتھ کہاں آباد ہے۔ اب وہ اس طاق میں تھا کہ کب وہ اپنے قبیلے سے باہر نکلے اور وہ واپس اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن ایک دن میں اس ویران راستے سے گزر رہا تھا جب اچانک ہی راستے میں اس درخت کے نیچے کھڑی وہ مجھے دکھائی دی۔ وہ یقیناً مجھ سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی، لیکن اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سرسراہٹ محسوس کر کے میں اس جنزادی سے کہنے لگا، بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر وہ حیران تھی، لیکن اچانک ہی اس نے اس درویش فقیر کو دیکھ لیا تھا۔ تبھی میں اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بہت ہی طاقتور تھا، مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ اچانک ہی جن زادی نے اپنی ماں اور قبیلے کے سارے جنات کو یاد کیا۔ وہ سب اس کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے تھے۔ پھر وہ جن زادی اس عامل سے کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس نے مجھے بیٹی بنا کر پالا آج وہ میرا دشمن بن جائے گا۔ تبھی قبیلے کا سردار آ گیا۔ وہ کہنے لگا، ہماری جن زادی اتنے سال سے قبیلے سے دور رہی، یہ اس کی زندگی تھی، تبھی یہ زندہ سلامت واپس اپنے قبیلے لوٹ آئی ہے، لیکن تم نے اس کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اس کی زندگی بچائی، لیکن اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ عامل کہنے لگا، میں اس سے ایک بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا، میں اس سے مدد لینا چاہتا تھا، لیکن یہ پہلے ہی مجھے چھوڑ کر آ گئی۔ تو سردار کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ تمہاری مدد کر دے گی، تمہارے ان احسانوں کا بدلہ چکائے گی جو تم نے اس کی ذات پر کیے، لیکن کبھی بھی اپنے قبیلے سے جدا نہیں ہوگی۔ عامل کو یہ بات منظور تھی۔ آخرکار وہ جن زادی واپس اپنی ماں اور بہنوں کے پاس لوٹ گئی۔ ہمیں بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ اب میں نے دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی شادی کر دی تھی، لیکن میرا اس شہر میں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک رات میں اماں کے ساتھ یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا تھا، کیونکہ اب اس ریلوے اسٹیشن پر بہت زیادہ ویرانی اور اداسی چھا گئی تھی۔ جب میں آخری رات وہاں سے گزر رہا تھا تب وہ میرے سامنے آئی اور کہنے لگی، جو بھی تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ تم ایک نہایت اچھے اور نیک انسان ہو۔ تم نے میری مدد کی، مجھے اس دن کھانا کھلایا جب میں بھوک سے نڈھال انسانوں کی دنیا میں بھٹک رہی تھی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خود ترقی کرو۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں اپنے دل میں عجیب سی اداسی محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں دوسرے شہر میں آ گیا۔
यहाँ मैंने अपने छोटे से स्टॉल को लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोगों ने मेरे खाने को इतना पसंद किया कि अब मेरे पास लोगों की एक भीड़ जमा रहती। नाचार मुझे अपने 2 मुलाजिम रखने पड़े। मैं खूब दिन रात तरक्की कर रहा था। फिर अम्मा ने मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी। कभी कभी मुझे उस लड़की के अंदर उसे जिनजादी की झलक दिखाई देती तो मैं दिल में सोचता कि कहीं मैं भी तो उसके इश्क में गिरफ्तार तो नहीं हो गया था। ये बात हकीकत थी, उसको भुलाना नामुमकिन था। वो एक ऐसी जिनजादी थी जो भटकती हुई इंसानों की दुनिया में आ गई थी, लेकिन बिलाखिर अपने कबीले के पास वापस चली गई। आज उसकी जिंदगी कैसी होगी ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरी जिंदगी को बदलने वाली वही जिनजादी थी जिसने मेरा बहुत साथ दिया। कभी कभार बैठे बैठे मुझे उसकी याद आती है तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। उसका परियों सा हुस्न देखकर मैं बहुत हैरान हुआ था, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो एक लड़की नहीं बल्कि एक जिनजादी थी जो किसी की तलाश में यहाँ आई थी।